Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about a case on necrophilia. This case has led to a debate about dignity. सो ये जो केस है या ये जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 1 essay perspective, also important from GS paper 2 governance and Indian polity point of view and useful for GS paper 4 ethics and integrity point of view. क्या है बैकग्राउंड? काफ़ी डिस्गस्टिंग बैकग्राउंड है, लेकिन अभी इस केस को समझने के लिए इसको देखना होगा. देखिए 2015 में a 21-year-old woman was first murdered by an accused person, Rangaraju, and then he dragged her body into the nearby bush where he raped her. So he first murdered the woman and then he raped the woman, and the accused was first sentenced for murder and then he was also sentenced for 10 years for rape as well. तो पहले उसको मर्डर चार्जेस में 15 साल की सज़ा हुई और फिर उसको रेप चार्जेस में 10 साल की और सज़ा हुई. लेकिन बाद में द मैटर वाज टेकन इन टू कर्नाटका हाई कोर्ट. जो ये जो 15 साल मर्डर के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर मर्डर एंड 10 years फॉर रेप, एडिशनल 10 year फॉर रेप, ये उसको लोअर कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी. एंड देन द मैटर वाज टेकन टू कर्नाटका हाई कोर्ट. और कर्नाटका हाई कोर्ट ने फिर हाल फिलहाल में एक आदेश ऑर्डर देते हुए कहा है कि द रेप केस विल नॉट होल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में द रेप मैटर वुड नॉट बी वैलिड अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी. आईपीसी 375, 376 एंड 377, these three sections basically deal about रेप एंड एसोसिएटेड इशूज़. तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि रेप का जो केस है इसके पर्टिकुलर मैटर में वो वैलिड नहीं होगा. एंड दैट इज़ हाउ ये जो 10 साल का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट दिया गया है फॉर रेप, दैट हैज़ बिन ब्रॉट डाउन बाय कर्नाटका हाई कोर्ट. तो क्यों कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि रेप मैटर विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर केस? क्योंकि हाई कोर्ट के हिसाब से अ डेड बॉडी कैन नॉट बी कॉल्ड एज ह्यूमन और अ पर्सन. और आईपीसी 375 या 377 when they talk about sexual offense या rape, they talk about sexual offense or rape against a human or a person, and a dead body cannot be considered as a human or a person. और उसी केस के बेसिस पे, उसी ग्राउंड के बेसिस पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि नो, दिस पर्टिकुलर केस डज नॉट अट्रैक्ट द रिगरस इम्प्रिजनमेंट मैटर ऑफ 10 years फॉर रेप अंडर आर्टिकल 375. The court clarified that sexual intercourse on a dead body is nothing but necrophilia, and IPC does not list necrophilia as any specific offense under sexual offense. Necrophilia होता क्या है? Necrophilia is a fascination with death and with the dead people, and more specifically or particularly an erotic attraction to corpse. I hope you are getting the idea. Very disgusting idea, yet you should be knowing such things if you have to write some meaningful things in essay or ethics. So necrophilia, where some people are mentally you may say in a pathological state, who are more erotically attracted towards the dead, and such people are known as necrophilic. And necrophilia does not attract any punishment because there is no particular case or no particular provision in our country to deal with necrophilia. अब ये जो पर्टिकुलर मामला है कर्नाटका हाई कोर्ट वाला, इसने हमारे देश में एक ब्रॉडर डिबेट स्टार्ट कर दिया है कि हमें आईपीसी 375 दैट डील्स विद द मैटर ऑफ रेप एंड सेक्सुअल वायलेंसेस, इसको अमेंड करने की ज़रूरत है, इसको लार्जर डोमेन या इसको डायमेंशन देने की ज़रूरत है. नेक्रोफीलिया वाला मामला हो गया अभी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं. मैरिटल रेप्स के केसेस हो गए. इन आवर कंट्री marital rapes have been considered as an exception where there is no punishment. It has been basically exempted from any kind of punishment or legal recourse. तो उसको लेकर के भी काफ़ी दिनों से एक डिबेट चल रहा है कि marital rapes, why they are an exception, rape is rape, and now necrophilia issue is there. necrophilia का जो पूरा का पूरा मामला है, it is raising a debate about a dignity of an individual.
डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी इज समथिंग दैट ए ह्यूमन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विथ इवन आफ्टर डेथ। जैसे कोई भी इंसान अगर मर जाता है तो उसके डेड बॉडी और किसी एनिमल के डेड बॉडी में, कार्कस में, टेक्निकली तो कोई अंतर नहीं है, येट अगर आप किसी अनरिलेटेड पर्सन को भी देखेंगे डेड बॉडी लाइंग ऑन द रोड साइड, तो आप उसको ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगेगा कि कोई भी अपना उसका नियर डियर वंस नहीं है तो आप खुद कोशिश करेंगे कि लोगों से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके उसके लास्ट राइट्स करा दिए जाए। मतलब आपको लगता है कि इवन आफ्टर डेथ दैट पर्सन डिजर्व्स डिग्निटी। तो डिग्निटी का इशू रेज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर केस में भी, नेक्रोफीलिया में भी, कि भाई इवन आफ्टर डेथ ए पर्सन डिजर्व्स सम डिग्निफाइड ट्रीटमेंट एंड ऑन दैट बेसिस नेक्रोफीलिया शुड ऑल्सो बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो डिग्निटी और रेस्पेक्ट में थोड़ा अंतर होता है, और मरने के बाद भी इंसान को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। डेड बॉडी के साथ भी हम लोग काफ़ी डिग्निफाइड तरीके से बिहेव करते हैं। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। यू सी, in this particular case A may be treating B with respect, but both A and B should be treating each other with dignity. Dignity क्या होता है? Dignity is something that a person deserves or is worthy just by the virtue of being human. तो दोनों इंसान हैं, on that basis only both person deserves that dignified treatment. जबकि respect क्या होता है? Admiration for someone because of their qualities or achievement. तो इस natural सी बात है, इस particular case में B appears to be an achiever, तो A will respect B, but both should treat each other with a dignified manner, in a dignified manner. So dignity is when we say someone or something has worth beyond their usefulness or abilities. आप किसी के साथ भी उसके एबिलिटीज, उसके अचीवमेंट के बेसिस पे नहीं फैसला करते हैं कि मैं इसको डिग्निफाइड ट्रीटमेंट दूंगा या नहीं दूंगा। आपको हर एक गरीब से गरीब आदमी को भी एक बेसिक ट्रीटमेंट देना है, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्निफाइड ट्रीटमेंट। तो डिग्निटी का जो कॉन्सेप्ट, इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया इमैनुअल कांट ने। ही कॉल्ड द डिग्निटी एज कैटेगोरिकल इम्परेटिव। हमारा प्रीएम्बल भी बात करता है अबाउट डिग्निटी। डिग्निटी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ बिकम द बेसिस फॉर ह्यूमन राइट्स इन मॉडर्न सोसाइटीज़। अ पर्सन डिजर्व्स डिग्निफाइड ट्रीटमेंट जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। और नेक्रोफीलिया जो है, इट इज़ डिनाइल ऑफ डिग्निटी टू अ पर्सन। Even after death, a person deserves dignified treatment, and necrophilia is denial of that dignity. And that is why necrophilia के केस के बाद now there has been a debate to amend IPC 375 and include issues like necrophilia and marital rapes. The next article is about International North-South Transport Corridor, INSTC. This topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view. INSTC है क्या? देखिए, ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मल्टी मॉडल मतलब इसमें अलग अलग मोड्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। शिप होगा, रेलवे लाइन होगा, रोड रूट होगा, दैट विल कनेक्ट इंडिया टू रसिया। तो इंडिया का जो मुंबई पोर्ट है, दैट विल बी कनेक्टेड विथ सेंट पीटर्सबर्ग वाया दिस INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब देखिए, यहाँ मुंबई JNPT से बंदर अब्बास पोर्ट ऑफ ईरान, वहाँ से ये रोड ट्रांसपोर्ट, फिर वहाँ से बाकू अजरबैजान से अस्त्राखान रशिया। तो ये जो रीजन है ये शिप ट्रांसपोर्ट होगा, और फिर यहाँ से रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, रोड और रेल के थ्रू सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये जो INSTC है, ये इंडिया और रसिया मिल करके डेवलप कर रहे हैं सिंस 2000 इटसेल्फ। द अग्रीमेंट वाज साइंड इन 2002। सिंस देन मैनी मेंबर्स हैव ज्वाइंड। इतने सारे मेंबर्स हैं अब INSTC के। INSTC के इम्प्लीमेंट हो जाने से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अभी इंडिया को जब रशियन मार्केट को रीच करना होता है तो दिस पाथ इज़ नॉर्मली टेकन। ये रेड सी वाला पाथ, बाबल मंडाब एंड देन मेडिटेरियन सी से होते हुए जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए, नॉर्थ सी होते हुए। सो ये वाला जो पाथ है, इट टेक्स इंडिया और इंडियन शिप्स टू अबाउट 50 days टू रीच सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट। लेकिन INSTC अगर फुल्ली तरीके से फंक्शनल हो जाए तो इट विल ब्रिंग डाउन द ट्रांजिट टाइम टू 21 days and the cost will also become about 30 to 40% cheaper. Second, most importantly, India will not have to depend on countries like Pakistan for accessibility to Central Asia.
यू सी अभी सेंट्रल एशिया एक्सेसिबिलिटी, सेंट्रल एशिया कंट्रीज आर दीज कंट्रीज, जितने भी तान वाले हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान, ये 5 देश सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं. दे आर वेरी मच रिच इन एनर्जी सप्लाई और एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है इंडिया, सो इंडिया नीड्स एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया हैज़ टू मूव वाया पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल तापी पाइपलाइन के बारे में हमने चर्चा की थी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन. तो पाकिस्तान इज़ अ ट्रांजिट कंट्री और अ बफर कंट्री एंड दैट एक्ट्स एज एन हिंड्रेंस. अच्छी बात होगी INSTC की कि रसिया के साथ तो हमारा जो ट्रांजिट टाइम है वो घटाएगा ही. अभी INSTC अच्छे से फंक्शनल हो जाएगा तो इट विल हेल्प इंडिया इन हैविंग एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज वाया दिस रूट, and we can bypass Pakistan to reach Central Asian countries and have accessibility to energy supplies. And strategic relevance, INSTC can be seen as India's response to Belt and Road Initiative of China. आपको पता है कि Belt and Road Initiative of China का दूसरा सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स. ऐसा माना जाता है कि चाइना थ्रू सीरीज ऑफ पोर्ट्स इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया. सीरीज ऑफ पोर्ट्स इंडियन ओशन में बना करके, जिसको चाइना कहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन उसके कई सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स. तो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स को ब्रेक करा जा सकता है या ब्रेक करने की कोशिश मानी जा सकती है. स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस माना जा सकता है INSTC का, दैट इट काउंटर्स स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स. देखिए INSTC काफ़ी टाइम से हिंड्रेंस में चल रहा है. प्लान लगभग 20 साल हो गए लेकिन फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. उससे से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है जहाँ पे रसिया ने प्रॉमिस किया है इंडिया को कि इट विल टेक केयर ऑफ एलिमिनेटिंग और लीगल एंड लॉजिस्टिकल हर्डल्स रिगार्डिंग INSTC. The next article is about remittance inflow for India. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Remittance होता क्या है? देखिए, किसी भी देश के जो लोग हैं वो जब विदेशों में काम करने जाते हैं तो उनको कहा जाता है एक्सपैट्स. जैसे मान लीजिए कि इंडिया के लोग हैं वो विदेशों में, सऊदी अरबिया में काम करने गए, कुवैत में काम करने गए, तो इनको कहा जाएगा इंडियन एक्सपैट्स. ये वहाँ पे जब काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ से पैसा कमाते हैं और वापस अपने देश में भेजते हैं. ये जो पैसा होता है जो अपने देश में वापस भेजते हैं, इसको कहा जाता है रेमिटेंस. और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री है. रेमिटेंस आने से वो हमारे करंट अकाउंट बैलेंस में दिखता है एंड ओवरऑल इट हेल्प्स इन ऑगमेंटिंग इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व. तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस अर्निंग कंट्री है और इनफैक्ट छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, बाय लार्ज मार्जिन इंडिया इज़ लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्निंग कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया का रेमिटेंस लगभग $111 बिलियन था. दूसरे नंबर पर मेक्सिको $861 बिलियन, तीसरे नंबर पर चाइना, यानी कि दूसरे और तीसरे को मिला भी दिया जाए तब भी लगभग इंडिया उसके बराबर है, उससे हल्का आगे है, ऐसा है. तो इंडिया इज़ लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्नर कंट्री इन द वर्ल्ड और नेचुरल भी है. इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और देश के अंदर उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के कारण लोग विदेशों में नौकरियां ढूंढने जाते हैं. दैट इज़ हाउ रेमिटेंस वापस वो अर्न करके भेजते हैं. अगर स्टेट वाइज रेसिपिएंट्स को देखें तो महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्नर. दिस इज़ अ डेटा फ्रॉम RBI. तो 2016-17 तक केरला वाज एट द टॉप, बट 2016-17 के बाद से धीरे धीरे महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट अर्नर. सेकंड नंबर पे केरला. अभी क्या है करंट न्यूज़? करंट न्यूज़ ये है कि पिछले साल 2022 में इंडिया ने अपने रेमिटेंस अर्निंग में लगभग 24% का ग्रोथ देखा था. $89 बिलियन से बढ़ करके $111 बिलियन हो गया था, लगभग 24% का ग्रोथ. लेकिन वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, यही रिपोर्ट दुनिया भर के देशों के रेमिटेंस का डेटा दिखाता है. तो वर्ल्ड बैंक का ये लेटेस्ट रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ कह रहा है कि इस साल 2023 में इंडिया का जो रेमिटेंस अर्निंग होगा दैट विल इंक्रीज ओनली बाय 0.2%. ज़्यादा इस बार रेमिटेंस नहीं बढ़ने वाला. पिछले बार लगभग 24% बढ़ा था, 89 से $111 बिलियन हुआ था, लेकिन इस बार बढ़ेगा सिर्फ 0.2%. क्या कारण है इसके पीछे? तो 2 कारण बताए जा रहे हैं इस बार लो इंक्रीज इन द रेमिटेंस होने के पीछे. एक तो OECD कंट्रीज या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज, GCC कंट्रीज, ये सारे कंट्री GCC कंट्रीज हैं. तो GCC कंट्रीज या OECD कंट्री जो इंडिया के लिए मेन रेमिटेंस सप्लायर कंट्रीज हैं, वहाँ का इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो चल रहा है इस साल. तो इस कारण से वहाँ पे उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए इतने सारे इंडियंस को वहाँ जॉब मिल नहीं रही है, इसलिए इस बार इतना रेमिटेंस अर्निंग नहीं होगा. एंड सेकेंड इज हाई बेस इफेक्ट. चूँकि लास्ट ईयर इतना ज़्यादा हो गया है रेमिटेंस $111 बिलियन कि इस साल
उसके तुलना में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लग रहा है. द बेस that is previous year is so high that this year even after relatively good performance the growth rate is very low. That is the base effect. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फिनोमेना ऑफ फिश किल. एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, यूएस का गल्फ ऑफ मेक्सिको, जिसको टेक्सास कोस्ट भी वो लोग कहते हैं, वेस्ट टेक्सास कोस्ट, वहाँ पे लगभग लाखों ऐसे डेड फिशेज हैव बीन फाउंड. अ फिनोमेना ऑफ फिश किल हैज़ बीन सीन. लाखों ऐसी मछलियाँ दे हैव बीन फाउंड डेड एंड वॉश्ड ऑफ शोर ऑन दिस गल्फ ऑफ मेक्सिको कोस्ट ऑफ टेक्सास फॉर द यूएस. क्या कारण है इतनी सारी मछलियों के मरने के पीछे? तो सबसे बड़ा कारण है वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का कम हो जाना. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो गया गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन में. और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने के पीछे जो 3 मेन फैक्टर्स बताए जा रहे हैं वो है वार्म वाटर. बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सी सरफेस इज राइजिंग. और जैसे जैसे वाटर वार्म होता जाता है उसकी ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी कम होते जाती है. ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व रहता है, गर्म पानी में ऑक्सीजन जो है जल्दी डिजॉल्व नहीं होता है. तो सी वार्मिंग के कारण ऑक्सीजन डिजॉल्व्यूशन कम हो गया है और जिस कारण से फिशेस मर रही हैं. दूसरा, पिछले 2 या 3 वीक से यहाँ पे हवा जो है काफ़ी तेज़ नहीं चल रही है, हवा काफ़ी काम है. और हवा काम रहने के कारण जो वेव्स हैं वो भी काफ़ी काम हैं. और इस कारण से हवा का वेव्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं हो रहा है. और हवा जब वेव्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जब विंड इंटरैक्ट्स विथ वेव्स, तो दैट लीड्स टू डिजोल्यूशन ऑफ सम ऑक्सीजन इन द वाटर. That is also basis for increase in oxygen concentration, but because of the calm sea, the mixing between water and wind is not happening, and that is how oxygen concentration has gone down. तीसरा फिनोमेना, ओवरकास्ट वेदर इन टेक्सास. यहाँ पे काफ़ी 2-3 हफ्तों से क्लाउडी स्काई है. क्लाउडी स्काई होने के कारण हो क्या रहा है कि जो ओशन के अंदर के फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो ओशन के अंदर के मरीन सी प्लांट्स कहे जा सकते हैं, मरीन प्लांट्स कहे जा सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, वो ओवरकास्ट कंडीशंस होने के कारण सनलाइट ज़्यादा आ नहीं रही है, इसलिए वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एक्शन कर नहीं रहे हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में बना नहीं पा रहे हैं. तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट बिकॉज ऑफ ओवरकास्ट वेदर कंडीशन इन टेक्सास, एंड दैट इज हाउ दे आर नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज हाउ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हैज़ डिक्रीज्ड इन दिस टेक्सास कोस्ट, एंड दैट हैज़ लीड टू फिश किल, फिनोमेना फिश किल. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम राइफल्स राशन ट्रक्स ब्लॉक्ड इन मणिपुर. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो असम राइफल्स और मणिपुर में क्या हो रहा है इनकी वो हम देखेंगे. पहले जरा सा ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया. देखिए, इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज. इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में आते हैं हमारे नेवी, एयर फोर्स या इंडियन आर्मी. तो बेसिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर दोज दैट आर ऑफेंसिव फोर्सेज दैट आर डिप्लॉयड ड्यूरिंग वॉर. तो इंडियन आर्मी नॉर्मली क्या करती है, ऐसे अपने कैंप में ट्रेनिंग वगैरह करते रहती है, जब वॉर का समय आता है तब उनको डिप्लॉय किया जाता है, दैट इज इंडियन आर्म्ड फोर्सेज. The paramilitary forces, CAPF, they are defensive forces deployed during peace time. इसके एग्जाम्पल हैं CRPF, CISF, SSB, ITBP, BSF, NSG, असम राइफल. सबका अपना अपना काम है. असम राइफल्स की अगर बात की जाए, इट वॉज established in 1835 and it is oldest of all the paramilitary forces. असम राइफल्स को मेनली डिप्लॉय किया गया है टू गार्ड इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर. असम राइफल्स की एक खासियत है या पीटी पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया विथ ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर. ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है असम राइफल्स का, इट इज़ विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जबकि इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इज़ विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है दैट लीड्स टू सम टाइम कन्फ्यूजन, क्योंकि असम राइफल्स का
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड ऑपरेशनल कंट्रोल विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। करंट न्यूज़ क्या है, देखिए मणिपुर में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो तो आपको पता ही है। जो वैली एरिया में मीतीज लोग हैं उनको एसटी स्टेटस देने की बात कही वहाँ के हाई कोर्ट ने, जिसके ऊपर फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वायलेंस शुरू हो गया। और मेनली जो नागाज और कुकीज़ हैं हिली एरियाज़ में, वो वायलेंस कर रहे हैं अगेंस्ट मीतीज़। अभी हुआ क्या है कि अभी असम राइफल्स को इंडिया म्यांमार बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। What these Meetees are doing, Meetees have blocked this national highway and they are not allowing Assam Rifles to have accessibility to rations. जो राशंस वो पहुंचने नहीं देना असम राइफल्स को। और क्यों मीतीज ने हाईवे ब्लॉक कर दिया और असम राइफल्स का राशन नहीं पहुंचने दे रहे हैं, उसके पीछे मीतीज का कहना है कि जो असम राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्स है, इट इज़ सपोर्टिंग कुकीज़, इट इज़ हेल्पिंग कुकीज़, and that is how Meetees have started to protest against Assam Rifle and they have blocked the highway that is one of the main artery for supplying food and other civil supplies to Assam Rifles guarding India Myanmar border। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बैंकॉक विजन इज एसोसिएटेड विद बिम्स्टेक and gender social norm index is released by UNDP। तो पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।